Good morning, students. Today we are going to start our second book, Politics in India Since Independence. This is our second book. We have covered three chapters of our first book, and today we are going to start our second book. The name of the book is Politics in India Since Independence. And in this book, we are going to start our first chapter, that is Challenges After Independence. What is the name of the first chapter? Challenges of Nation Building. Challenges of Nation Building or Challenges After Independence, you can say. So this is our first chapter, and as per your new syllabus, what are the various contents we are going to cover in this chapter are: first one is the nation and nation building, second one is the legacy of partition, challenges of refugees, resettlement. Third one is the Sardar Vallabhbhai Patel and integration of states. Fourth one is the Kashmir issue. Fifth one is the Nehru's approach to nation building. And sixth one is the political conflicts over language and linguistic organization of states. So we are going to cover all these six topics under this first chapter. So we will discuss these topics one by one. So let's start our chapter. So first is the introduction. We start with the introduction. Basically, what we are going to cover in this chapter. Let me tell you that we got independence on 1947, 15 August 1947. But that was not easy after the independence because we got lot of challenges with our birth. हमारे जन्म के साथ हमें बहुत सारे challenges भी मिले थे, and we have to deal with these challenges just after the independence. And what were these challenges? We will discuss them one by one and how we tackle them. कैसे हमने उनके साथ tackle किया, हमारी government ने उनके साथ कैसे जो है tackle किया. We will going to discuss all these issues in this chapter particularly. In this chapter, the first few years in the life of independent India were full of challenges. So we can say that our birth, just after our birth, means our nation's birth, we got lot of challenges. So the first few years of the life of independent India were full of challenges. हमें बहुत सारे challenges जो है वो मिले थे with our independence. Some of the most pressing ones concerned national unity and territorial integrity of India. और जो सबसे ज़्यादा challenges थे वो क्या थे? First one is the national unity. As we all know that India is a diverse country, different cultures, different languages, different customs around the country. So it was quite difficult to unite that nation with such a diversity. तो ये बहुत ही difficult था कि एक ऐसे nation को हमें जो है unite करके रखना है जिसमें कि बहुत सारी जो है diversity. You can see around the world आपको क्या मिलेगा? Homogeneity मिलेगी. Like European countries हैं या other countries हैं, वहाँ पर जो है homogeneity mean homogeneous peoples हैं. They are following the same kind of like they have same culture and religion, but we have different languages, different cultures. So it was quite difficult for the national unity. And second one was the territorial integration of India. Territorial integration of India. The second one was territorial integration of India, means that when we got independence, so India was divided into British provinces and princely states. So जो इंडिया था वो किन चीज़ों में डिवाइड था? ब्रिटिश प्रोविंस में था और प्रिंसली स्टेट में था. ब्रिटिश प्रोविंसेस कौन से थे? ब्रिटिश प्रोविंसेस आर दोज एरियाज विच केम डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कि डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते थे. उनको हम ब्रिटिश प्रोविंसेस बोलते थे. एंड देयर वर 565 नियर स्मॉल और बिग 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, जो कि वहाँ के जो लोकल रूलर्स थे, जो राजा थे वहाँ के जो लोकल, दे हैव सम काइंड ऑफ फ्रीडम टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर इंटरनल अफेयर्स. ऐसा नहीं है कि वो ब्रिटिश जो सुपरमेसी थी उससे पूरी तरह से फ्री थे, बट उनको कुछ जो है फ्रीडम दी गई थी टू टेक देयर ओन डिसीजन रिगार्डिंग देयर इंटरनल मैटर्स. सो
Basically we have two challenges. First one is the national unity and second one was the territorial integration, कि कैसे हमें इस पूरी टेरिटरी को जो है एक साथ जो है बाइंड करके रखना है, बांध के रखना है. We begin the story of politics in India since independence by looking at how three of these challenges of nation building were successfully negotiated in the first decade of 1947. So basically in this chapter we will discuss that जो हमारे challenges थे, the challenges which we got after independence, जो हमें independence के बाद मिले थे, हमें उन how we deal with them, हमने उनके साथ कैसे deal किया था, successfully negotiate किया. So we are going to discuss all these things in this chapter. Freedom came with partition, which resulted in large-scale violence and displacement and challenged the very idea of secular nation. As we all know that our freedom fighters, they were quite obvious about the secular state. वो starting से ही एक चीज़ को favor कर रहे थे, एक तो democracy को और दूसरा secular state को जो है favor कर रहे थे. But there is again a story like in 1906, Muslim League was formed in Dhaka. Dhaka is now the capital of Bangladesh. So Muslim League was formed in 1906 in Dhaka. Nawab Salimullah founded this political party in 1906, and from the beginning वो जो है they wanted a separate nation for the Muslims. वो starting से ही एक separate nation चाहते थे, किसके लिए? Muslims के लिए. The integration of princely states into the Indian Union needed urgent resolution. जो second था, the integration of princely states into the Indian Union needed urgent resolution. और दूसरा था हमें जो है because starting from the beginning जो हमारे freedom fighters थे उनको क्या था, secular nation होना चाहिए. एक तो democratic government होनी चाहिए, दूसरा क्या है, secular nation होना चाहिए. और जितने भी princely states हैं उनको हमें कहीं ना कहीं united करना था और उनको हमें अपनी कंट्री के मेन स्ट्रीम में लेके आना था. द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज needed to be drawn afresh to meet the aspiration of the people who spoke different languages. और फिर एक और चैलेंज था कि जो हमारे इंटरनल बाउंड्रीज हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड, क्या था हमारे पास ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट, तो हमें फिर से एक फ्रेश बाउंड्रीज जो है, इंटरनल बाउंड्रीज जो है, हमें उनको ड्रॉ करना था अपने नेशन की, सो दैट कि भाई जो सो दैट टू मीट द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल हु स्पोक डिफरेंट languages. So nation and nation building, the first topic which we are going to start from. This is the overview of the chapter, what we are going to discuss in this chapter basically. You are quite clear that when we got the independence, we also got a lot of challenges and how to deal with challenges, and हमने उन challenges को कैसे जो है deal किया, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. सो नेशन एंड नेशन बिल्डिंग. एट द आवर ऑफ मिडनाइट ऑन 14-15 अगस्त 1947, सॉरी यहाँ पे दिस इज़ 1947, 1974 बाय मिस्टेकन, इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस and J.L. Nehru became the first Prime Minister of Free India. So finally we got what we got. We got the independence. After a 200 years rule of British, finally we got the independence on the midnight of 14th and 15th August 1947. India attained independence, and who became the first Prime Minister of India? Pandit Jawaharlal became the first Prime Minister of India. The famous Tryst with Destiny speech given by Jawaharlal Nehru in the Constituent Assembly का जो सेशन था, जो हमारी Constituent Assembly थी जिसने हमारा Constitution बनाया था, उसके सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना जो है फर्स्ट स्पीच जो है, he gave his first speech. The name was Tryst with Destiny, was given by the Jawaharlal Nehru. इंडिया हैड टू गोल्स ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीड अपॉन. जब हमने इंडिपेंडेंस ली तो उससे पहले से ही हमारे दो गोल्स थे. और फ्रीडम फाइटर और नेशनल मूवमेंट जो है, जो इंस्पायर्ड था, बेसिकली वी हैव टू गोल्स. इंडिया हैड टू गोल्स ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीड अपॉन. One, that after independence we shall run our country through democratic government. It was quite clear from the beginning of the freedom movement, and
दैट कि भाई व्हेन वी गॉट द इंडिपेंडेंस, व्हेन वी गॉट द इंडिपेंडेंस, जैसे ही हम आज़ाद हो जाएंगे तो श्योरली वी आर गोइंग टू रन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर कंट्री, क्योंकि भाई हम हमारी कंट्री में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो रन करेंगे। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ country, and second that the government will run for the good of all. Second was that the government will run for the good of all. As we all know that when we got independence, or even today we have a diversity in our nation. There are minorities, there are majorities, there are different religions, there are different cultures. So it was clearly decided कि भी जो government होगी ना वो किसी एक particular sect या section की नहीं होगी, that the government will run for the good of all, means पूरी community के जो है हमें जो है welfare को जो है लेके चलना था। तो basically दो गोल थे इंडिया के, क्या थे? फर्स्ट तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा और सेकंड जो है गुड फॉर ऑल। Three challenges, and with the independence we got three challenges, and what are these three challenges? कौन कौन से तीन मेन challenges थे जो कि हमें हमारे इंडिपेंडेंस के साथ मिले थे? मीन्स वी गॉट दीज चैलेंजेस ऑन आवर फर्स्ट बर्थडे, हमारे पहला जो बर्थडे था उसी पर हमें थ्री चैलेंजेस मिले थे। द चैलेंजेस वॉज टू शेप ए नेशन विद दैट वॉज यूनाइटेड ऑल्सो, इट हैज़ a lot of varieties, different languages and different cultures and religion. The first challenge was the unity of the nation. तो पहला challenge क्या था? Unity of the nation, as we have discussed कि भाई different languages, different cultures, religions, varieties, so much diversity. So it was a challenge to unite a nation with such a diversity. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि एक इतने बड़े नेशन को जिसमें कि इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, रिलीजियस डाइवर्सिटीज़ हैं, कल्चरल डाइवर्सिटीज़ हैं, लैंग्वेज डाइवर्सिटीज़ हैं, तो इसको कैसे यूनाइट करके रखना, दैट वाज अ बिग चैलेंज। द सेकंड चैलेंज वाज टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। सेकंड चैलेंज क्या था? टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश कैसे करना है। बिकॉज ओनली बाय राइटिंग इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने से कि वी आर अ डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारा गोल जो है वो अचीव नहीं हो जाता। हमें उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में लेके आना था। एंड ए कंट्री विद सच ए डाइवर्सिटीज़, it was quite difficult to establish democracy in such a country with such a diversities around the world। ये बातें होती थी उस टाइम पे कि भाई इंडिया with such a diversities adopted the path of democracy, कि भाई इतनी diversities होने के बाद इंडिया ने जो है डेमोक्रेसी का पाथ अडॉप्ट किया है। इट इज़ क्वाइट चैलेंजेबल फॉर इंडिया, कि भाई इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेबल होने वाला है। और जो नेशंस थे उस टाइम पे अराउंड द वर्ल्ड, जो बड़े नेशंस थे वो कहते थे कि उनको नहीं विश्वास ही नहीं था कि इंडिया सर्वाइव कर पाएगा विद द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी। द थर्ड चैलेंज वॉज टू एंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। सो बेसिकली वी गॉट थ्री चैलेंजेस। फर्स्ट चैलेंज क्या था? नेशन बिल्डिंग। सेकंड चैलेंज एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, एंड थर्ड चैलेंज development well-being of entire society. Here the constitution clearly laid down the principles of equality and special protection to all. That's why, because India is a secular country, India have different cultures, different languages, different religions. So starting से ही we are quite clear कि भी जो means development and well-being of entire society. So we have to make the provision for the development and well-being of entire society. So these are the three challenges basically. Then come to the partition, displacement and rehabilitation. As we have discussed that the Muslim League, which was formed in 1906, वो स्टार्टिंग से ही टू नेशन थ्योरी के फेवर में थी। इट वॉज इन द फेवर ऑफ टू नेशन थ्योरी, कि भाई दो कंट्रीज़ होने चाहिए, इंडिया एंड पाकिस्तान। और दे वांट अ रिलीजियस पार्टीशन ऑफ कंट्री। वो क्या चाहते थे? एक रिलीजियस पार्टीशन चाहते थे कंट्री का। दे वांट दैट जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं, जहाँ पर कि मुस्लिम ज़्यादा हैं, वो एक सेपरेट नेशन बने पाकिस्तान, और जहाँ पे हिंदूज़ हैं वो एक सेपरेट नेशन बने इंडिया, भारत।
तो जो मुस्लिम लीग थे वो स्टार्टिंग से ही टू नेशन थ्योरी जो है उसके फेवर में थे. इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज अगेंस्ट द टू नेशन थ्योरी, बट देयर वर सम डेवलपमेंट ड्यूरिंग द 1940s एंड ब्रिटिशर्स वर आल्सो इन द फेवर ऑफ टू नेशन थ्योरी. और फाइनली जो है मुस्लिम लीग जो है वो सक्सेस हुई अपने मिशन में, हम कह सकते हैं. ऑन 14 एंड 15 अगस्त 1947 नॉट वन बट टू नेशन स्टेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, इंडिया एंड पाकिस्तान. सो विद इंडिपेंडेंस बट वी गोट द पार्टीशन. इंडिपेंडेंस के साथ सबसे पहले हमें क्या मिला, हमारा जो फर्स्ट बर्थडे गिफ्ट मिला वो हमें मिला पार्टीशन. This was the result of partition, the division of British India into India and Pakistan. तो बेसिकली क्या हुआ, इंडिया डिवाइड हो गया दो नेशन में, इंडिया में और पाकिस्तान और इंडिया में. अब जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो क्या था कि भी टू नेशन थ्योरी वाज बिल्ट ऑन, वो किसके ऊपर बिल्ट थी, दैट मेजॉरिटी एरियाज, दैट मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज जो है उनको एक नेशन बना देना चाहिए जहाँ पर कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज है. बट अब जो मेन चैलेंज था वो था कि देयर वाज नॉट अ सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया इन आवर कंट्री. कोई एक सिंगल बेल्ट नहीं थी हमारी कंट्री में जहाँ पर कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे और हम उसको ईजिली जो है पार्टीशन कर दें और एक नया नेशन जो है डेवलप कर दे पाकिस्तान. बिकॉज लाइक so Pakistan was made and two East and West Pakistan was made. East Pakistan जो कि लाहौर and all and West Pakistan and East Pakistan is partition of Bengal basically. तो सिर्फ और सिर्फ जो पार्टीशन जो थ्योरी थी, टू नेशन थ्योरी थी, जब पार्टीशन हुआ तो दो ऐसे स्टेट भी थे जिनका पार्टीशन हुआ था. पहला पंजाब एंड सेकंड वन इज़ द बंगाल. दो हमारे स्टेट्स हैं जिनका की पार्टीशन हुआ था. According to the two nation theory made by the Muslim League, India consisted of not one but two people, Hindu and Muslim. So as we discussed that Muslim League starting से ही वो क्या चाहते थे, दो नेशन चाहते थे. From the beginning they wanted two nations, one for Hindus and one for Muslims. That is why it demanded Pakistan as separate country for Muslims. इसलिए उन्होंने किसका डिमांड किया, पाकिस्तान का डिमांड किया, सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम्स. द कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी, बट कांग्रेस ने इस थ्योरी को अपोज किया था. दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ द टू नेशन थ्योरी. बट एज आई हैव told you that in 1940s there were some development and with the support of the Britishers जो है मुस्लिम लीग जो है वो सक्सेस हुई टू नेशन थ्योरी में. प्रोसेस ऑफ पार्टीशन वी विल डिस्कस. इट वाज डिसाइडेड दैट इंडिया वुड बी डिवाइडेड इनटू टू कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान. सो फाइनली ये डिसाइड हो गया अब कि भाई जो है इंडिया को डिवाइड करना है टू नेशंस में, इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑन द बेसिस ऑफ और रिलीजियस मेजॉरिटीज़. तो एक क्लियर हो गया था अब कि भाई वी आर गोइंग टू divide our countries into two countries, India and Pakistan. It was decided to follow the principle of religious majority. किस बेस पे, religious majority पे जो है हम डिवाइड करेंगे. जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं वो पाकिस्तान बनेगा और जो हिंदू रेस्ट ऑफ जो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ हैं वो इंडिया बनेगा. इट मीन्स दैट areas where the Muslims were in majority would make up the territory of Pakistan, the rest was to stay with India. So it was clearly decided. It means that area where the Muslim were in majority make up the territory of Pakistan. भाई जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में है वो क्या बनेगा, पाकिस्तान बनेगा. बट आई हैव टोल्ड यू दैट देयर वाज नो सिंगल बेल्ट इन कंट्री वेयर मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी. कोई एक बेल्ट ऐसी नहीं थी जहाँ की भी मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, अलग अलग एरियाज में मुस्लिम मेजॉरिटी में से. सो कैसे हमने उसको डील किया, देयर वर टू एरियाज here, just try to understand student. There were two areas, one in the west, you can say this is the Pakistan, the West Pakistan, we can say this is West Pakistan. So basically क्या डिसाइड हुआ था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज है दे कॉन्स्टिट्यूट द पाकिस्तान, वो पाकिस्तान बनाएंगे. अब क्या था कि दो ऐसे एरियाज थे जहाँ पर कि मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, एक ये और दूसरा था यहाँ.
एंड दे वर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, और ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर थे. यू कैन सी there were two areas, one in the west and one in the east. There was no way these two parts could be joined, और कोई ऐसा वे नहीं था कि भाई इन दोनों पार्ट्स को जो है ज्वाइन कर सकें, बिकॉज इसके बीच में पूरा इंडिया था, इसके बीच में पूरा इंडिया था. सो इट वॉज डिसाइडेड दैट द न्यू कंट्री पाकिस्तान विल कॉम्प्राइज टू टेरिटरीज, वेस्ट एंड ईस्ट. सो फाइनली डिसाइड हुआ कि पाकिस्तान जो है दो टेरिटरीज में बनेगा, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान, जो कि बाद में जाके क्या बना, बांग्लादेश. इन 1971 जो हमारा 1971 का जो वॉर था उसमें हमने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया, किससे, पाकिस्तान से. एंड अ न्यू नेशन emerged. Bangladesh was emerged in 1971. We will discuss these topics in detail in next chapter. So it was decided that the new country of Pakistan will comprise two territories, west and east Pakistan, separated by a long expanse of Indian territory. So अब पाकिस्तान तो बन गया, बट पाकिस्तान जो बना वो क्या बना, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान, बिकॉज दीज वर द टू मुस्लिम मेजॉरिटी बेल्ट्स, क्योंकि ये दोनों ही मुस्लिम मेजॉरिटी बेल्ट्स थी. और जो टू नेशन थ्योरी थी वो किसके ऊपर डिपेंड थी, कि दैट द एरियाज विद मुस्लिम मेजॉरिटी जो है वो क्या बनेंगे, पाकिस्तान बनेंगे. So from here we can say that Pakistan, India was divided into two nations, India and Pakistan further have West Pakistan and East Pakistan. Khan Abdul Ghaffar Khan, known as Frontier Gandhi, opposed the two-nation theory. Not only the Indian National Congress, there were some Muslim leaders also. ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये अपोज किया था टू नेशन थ्योरी का. देयर वर सम मुस्लिम लीडर्स आल्सो हु अपोज द टू नेशन थ्योरी, एंड वन ऑफ देम इज खान अब्दुल गफ्फार खान, नोन एज फ्रंटियर गांधी. व्हाई इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी? इनको हम फ्रंटियर गांधी क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये कहाँ से बिलोंग करते थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस. नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो पाकिस्तान का था वो वहाँ से बिलोंग करते हैं, जिसको कि आज खैबर पख्तून एरिया हम बोलते हैं, जिसकी बाउंड्री अफ़गानिस्तान से टच होती है. एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ द, इट इज़ वन ऑफ द स्टेट ऑफ द पाकिस्तान नाउ. तो उनको हम फ्रंटियर गांधी बोलते थे. The other problem was that two of the Muslim majority provinces of British India, Punjab and Bengal, had very large area where the non-Muslim were in majority. So मैंने आपको बताया था कि दो ऐसे हमारे स्टेट्स थे, क्योंकि वो जो है एडजॉइनिंग स्टेट्स थे दोनों ही, द पाकिस्तान एंड द पंजाब एंड द बांग्लादेश वर द एडजॉइनिंग स्टेट्स. So what happened, Punjab and Bengal had very large area where the non-Muslim were in majority. तो दोनों ही स्टेट ऐसे थे जहाँ पर कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो है मुस्लिम्स मेजॉरिटी थे और एक पर्टिकुलर एरिया में नॉन मुस्लिम्स जो है वो मेजॉरिटी में थे. इट वाज डिसाइडेड दैट दीज टू प्रोविंसेस वुड बी स्प्लिटेड अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस मेजॉरिटी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि इन दोनों ही स्टेट्स को जो है हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे. इन दोनों ही स्टेट्स को हम डिवाइड कर देंगे एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, क्योंकि जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हैं वो डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट्स के कहाँ चले जाएंगे, विद पाकिस्तान. एंड जहाँ पर कि नॉन मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है वो डिस्ट्रिक्ट कहाँ आ जाएंगे, हमारे इंडिया के साथ आ जाएंगे. सो एट द टाइम ऑफ पार्टीशन टू स्टेट्स पंजाब एंड बंगाल वाज आल्सो डिवाइडेड. इन दोनों स्टेट्स को भी हमने जो है डिवाइड किया था. लाइक पाकिस्तान ऑल्सो हैज़ अ पंजाब, वी ऑल्सो हैज़ अ पंजाब. हमारे भी यहाँ पंजाब स्टेट है और पाकिस्तान में भी पंजाब स्टेट है. सो दीज टू स्टेट्स वर ऑल्सो डिवाइडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द पार्टीशन बेसिकली. सो हेयर who was the frontier Gandhi? Khan Abdul Ghaffar Khan is known as the frontier Gandhi. And why is known as the frontier Gandhi? Because he belongs to north western frontier province, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस से बिलोंग करते थे, जिसको कि अब खैबर पख्तून कहते हैं. इट इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान नाउ, शेयरिंग बाउंड्री विद अफगानिस्तान. सो व्हाट हैपन इन द पार्टीशन,
Two states was also got divided, Punjab and Bangladesh. A large number of people did not know on the day of independence or whether they were in India or Pakistan. तो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कि वो कहाँ हैं, वो पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं, बिकॉज देयर वाज नॉट अ पर्टिकुलर बाउंड्री बिटवीन दीज टू नेशंस. कोई एक पर्टिकुलर बाउंड्री तब तक बनी नहीं थी और दोनों ही साइड के जो लोग हैं वो कंफ्यूज थे कि भाई उनका नेशन, उनका कंट्री कौन सा होने वाला है. A large number of people did not know on the day of independence whether they were in India or Pakistan. The partition of these two provinces caused the biggest tragedy of partition. और ये जो partition था that was so, it was not peaceful. ये peaceful नहीं था. और जो हमारे leaders थे उनको भी नहीं पता था. They were not aware about the consequences of the partition. उनको भी जो partition की consequences हैं उनको भी नहीं पता था. Initially they thought that there will be some minor issues during the partition. उनको लगा कि partition के टाइम पे कुछ minor issues होंगे, बट कब वो minor issues major issues में जो है convert हो गए और कब situation जो है out of control चली गई वो किसी को भी नहीं पता चला. So एट द टाइम ऑफ पार्टीशन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको यही नहीं पता था कि हमारा देश कौन सा है, इंडिया है या पाकिस्तान. द अदर डिफ़िकल्टी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द पार्टीशन इज़ दैट ऑफ द माइनॉरिटीज़ ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर. और सबसे बड़ी जो डिफ़िकल्टी थी वो थी माइनॉरिटीज़ की ऑन द बोथ साइड. अब माइनॉरिटीज़ थे, सपोज हिंदूज़ एंड सिख्स जो कि उस टाइम पे जो न्यू नेशन पाकिस्तान था वहाँ पर थे. उनको लगता था कि भाई जो है हमें जो है कहाँ जाना चाहिए, बिकॉज माइनॉरिटीज़ वांट टू मूव टू देयर ओन कंट्री. वहाँ के जो सिख्स हैं और हिंदूज़ हैं उनको लगता था कि हमें इंडिया में नहीं चलें. ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर lakhs of Hindus and Sikhs in the areas that were now in Pakistan and an equally large number of Muslims on the Indian side of Punjab and Bengal found themselves trapped. और जो माइनॉरिटीज़ थे उनको अपने आप को क्या लगा, ट्रैप्ड लगा कि भैया हम कहाँ मूव करें, वेयर वी विल गो, वेयर शुड वी मूव, बिकॉज दिस इज़ नाउ पाकिस्तान. Pakistan is a Muslim country, Muslim majority country, and we are in minority here, so it's better to move to Indian side. उनको लगने लगा कि भाई इंडियन साइड में मूव करना बेटर है. एंड सेम विद द मुस्लिम्स इन इंडियन साइड, दे थॉट दैट आवर नेशन इज़ पाकिस्तान. और उन्होंने भी जो फिर दोनों ही जो कम्युनिटीज़ हैं दे स्टार्ट मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. There were to discover that they were undesirable aliens in their own homes in the land where they and their ancestors had lived for centuries. So just imagine that जिन घरों में वो इतने सालों से जो है अपने घरों में रह रहे थे वहीं पर वो क्या हो गए, एलियंस हो गए. मीन्स जहाँ पर उनकी पूरी एंसेस्टर्स रहे हैं, लिव्ड फ्रॉम द सेंचुरीज, कई सेंचुरीज से कई वहाँ पर रह रहे हैं, अब वही घर उनके जो है वो अलग हो गए. एज सुन एज इट बिकम क्लियर दैट द कंट्री वॉज गोइंग टू बी पार्टीशन, वेरी सुन द वायलेंस वेंट आउट ऑफ द कंट्रोल. और जैसे ही लोगों को पता चला कि भाई देश का बंटवारा हो चुका है, द कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू नेशंस, तो वायलेंस जो है स्टार्ट हो गई. और कौन टारगेट हुआ, माइनॉरिटीज़ को टारगेट करने लगे मेजोरिटीज़ भी को. द माइनॉरिटीज़ ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर वर लेफ्ट विद नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू लीव देयर होम्स. और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा जस्ट टू लीव देयर होम. और जो माइनॉरिटीज़ हैं दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड देयर ओन नेशन, और उन्होंने अपने कंट्रीज़ की तरफ जो है मूव करना स्टार्ट कर दिया. ऑफन एट ए फ्यू आवर्स नोटिस, और उनको बहुत ही छोटा सा नोटिस मिला था. तो नोटिस भी बेसिकली क्या था, इट वाज डिसाइडेड दैट कि भाई जो कंट्री जो हिंदू मीन्स अगर पाकिस्तान में रहना चाहते हैं वो पाकिस्तान में रह सकते हैं, अदरवाइज दे कैन मूव टू द इंडिया. एंड मुस्लिम्स ऑल्सो हु वांट टू स्टे इन इंडिया दे कैन स्टे, एंड इफ़ दे वांट टू मूव टू पाकिस्तान दे कैन मूव, बट पीसफुली. बट जो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस थी उसका जो है हमारे लीडर्स को जो है अभी नहीं पता था कि व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस. सो
This is all for today, students. Just watch the video carefully and take your doubts. And there were a lot of Hindi movies also on the background of partition. आपने देखी भी होंगी कुछ movies जो कि partition की background में बनी हैं हमारे यहाँ पे. From these movies, from these documentaries, you will get a good idea, एक अच्छा idea आपको जो है वहाँ से भी मिलेगा उन movies से. So that was the story of the partition after the independence, and in the next session we will discuss some other topics. So that's all for today. Have a nice day, students.